هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذ تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی چند آیات تلاوت فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا جو ہم سلسلہ ایک عرصے دراز سے اس پورے ایریے کے اندر شروع کیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی ایک برکت ہے، اور خصوصاً اس قرآن کی دعوت کو لے کر ہم سب اٹھے ہیں. در حقیقت تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو درس انقلاب دیتی، اور درس انقلاب سے مراد یہ ہے میری کہ انسانوں کی زندگی کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتی ہے. یہ جو قرآن حکیم جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا اور ابھی تلاوت کر رہے تھے، یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کر دیا گیا، اور یہ قرآن صرف وہیں تک تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کے اندر پھیلا. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس کا تعلق ہم سے بھی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب کہ جو رائے ہدایت دیتی ہے انسان کو.
اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت طلبگار ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کا جو آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے سے سب سے پہلے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا پڑے گا، اور یہ یقین دلوانا پڑے گا آپ کو کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی غلطی کی گنجائش ذرہ برابر نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے اتارا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا رہا۔ آپ اندازہ کیجئے یہ قرآن جو ہمارے لیے راہ ہدایت تھا، آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو اپنے گھروں کے اندر روزان کے اندر لپیٹ کر پوتاکوں کے اندر رکھتے ہیں، اور ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم اگربتی لگا دیتے ہیں اور کچھ اسی طریقے کی کوئی چیز خاص، لیکن اس سے ہدایت طلب نہیں کرتے۔ اور آج کل اس معاشرے کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم ناظرہ تو قرآن پڑھ لیں گے لیکن ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ قرآن اتنا کس لیے ہے؟ قرآن تو اتنا اسی لیے ہے کہ ہدایت کے لیے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور تدبر حاصل کیا جائے، اس کے اندر غور و خوض حاصل کیا جائے۔ لیکن جب ہم اس قرآن کو اس طریقے سے رکھ دیں گے تو میرے عزیز دوستوں ساتھیوں کہ اس سے ہم نہ برکت سمیٹ سکتے ہیں، نہ اس سے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن تو آپ کو کہتا ہے کہ جو مجھ سے آپ کو لینا ہے وہ آپ مجھ سے لے لیجیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور پھر اولیاء اکرام، اولیاء اللہ، دعوت کیا تھی ان کی؟ ان سب کی دعوت یہی تھی۔ کیا دعوت تھی؟ اس کتاب کی دعوت، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، عبادات کے اندر اپنے آپ کو منظم کرنا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی، یا اولیاء اکرام کی، خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کشف المجہوب اٹھا کے دیکھیے، آپ ایک نامور کتاب ہے۔ کیا دعوت ہے؟ توحید کی دعوت۔ کیا دعوت ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ اور آج جو ہم نے یہاں پر جو اب تلاوت آپ کے سامنے بھی کی ہے سورہ لقمان کی ابتدائی کہ الف لام میم حروف مقطوعات ہے، اور اس کے حوالے سے کسی کو کچھ اتھینٹک چیز معلوم نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز مس کر جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ قرآن مجید کی اکثر صورتیں اٹھا کے دیکھیے، اس کلام کی ابتدائی اسی طریقے سے ہوتی ہے، مقصد کے بڑائی اور توصیف اور حمد اور ثنا اس کے ساتھ۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، امام کی ابتدا کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں، امام سب سے پہلے کیا مانگتا ہے؟ دعا۔ کون سی دعا؟ سورۃ فاتحہ۔ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر وہ کیا مانگتا ہے؟ مقصد کی دعا مانگتا ہے اللہ سے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد خود رب آپ کو جواب دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر جواب دیتا ہے، سورہ اعلیٰ کی صورت میں جواب دیتا ہے، سورہ لقمان کی صورت میں جواب دیتا ہے، سورہ تکاثر کی صورت کے اندر جواب دیتا ہے، سورہ نصر کی صورت کے اندر، سورۃ العصر کی صورت کے اندر جواب دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انداز کیا ہے، بڑا دلکش اور بہترین انداز ہے۔ مقصد کہ جب بھی آپ اندازہ کیجئے، جب کسی حاکم کے سامنے اور بادشاہ وقت کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ وزیر اعظم آ جائے یا پریزیڈنٹ آ جائے، کوئی اس طرح کا آ جائے، تو آپ کا انداز کیا ہوگا کھڑے ہونے کا؟ ہاتھ باندھ کے
बिल्कुल एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप खड़े होने की कोशिश करेंगे। ये तरीकेकार क्या है? यही तरीकेकार आप देखिए, खुद कुरान भी आपको जब बाकायदा उसका आगाज करता है किसी भी सूरत का, तो वो इसी तरीके से आगाज करता है। ये हिकमत भरी किताब है, किताब की आयत है ये जो आपके सामने रखी जा रही है। क्या हिकमत है इसके अंदर? हिकमत कहते हैं दानाई को। इसके अंदर वो चीजें हैं कि जो आपके वहम गुमान के अंदर नहीं, आपकी वहम के अंदर, आपके जहन के अंदर वो चीजें मौजूद नहीं है। वो दानाई वाली चीज है। इस मुआशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर जब आप गोतजन हो जाते हैं, तो वो हिकमत और दानाई और सारी की सारी चीज खत्म हो जाती है, हमने देखा। लेकिन कुरान आपको हिदायत देता है, आपकी रहनुमाई करता है, और वो हिकमत भरी बातें करता है वो आपसे, और आपको कहता है कि हर दौर के लिए रिलायबल है ये कुरान, हर दौर के लिए। मकसद ऐसा नहीं है किसी खास दौर के लिए था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लिए था। मैं अगर बात करूं कि मकसद के आजकल के जो फितने उठ रहे हैं मुनकरीन हदीस के और इस तरह के मामलात जो है, इनकार सुन्नत के जो फितने हैं, वो बात यही करते हैं ना, ये तो उस जमाने की बातें हैं, उस जमाने की बातें, उस जमाने की बातें, किस जमाने की बात? मकसद पत्थर के जमाने की बात है। लेकिन नहीं, कुरान को हिदायत लेकर आया है, आगाज से लेकर इंतहा तक, जब तक आखिरत महशर बर्पा नहीं हो जाती उस वक्त तक के लिए हिदायत लेकर आया। आप इससे हिदायत लीजिए, इससे हिकमत भरी बातें इसके अंदर मौजूद है। हुदन व रहमत लिल मुहसिनीन, हिदायत है और रहमत मुहसिनीन के लिए। कई जगह पे हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी किसे कहते हैं? परहेजगार। और मुत्तकीन से ऊपर का जो दर्जा है वो एहसान में एहसान कहलाता है मकसद। और ये मोहसिनीन वो है कि जो बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं, पलटना जानते हैं उसकी तरफ, उसकी बातों की तरफ, उसकी हिकमत भरी चीजों की तरफ, उसकी सिफात की तरफ। ये जो आपके इर्द गिर्द मुआशरा बिखरा हुआ उसके अंदर, वो सारी की सारी, वो कहता है कि उन मोहसिनीन के लिए है। हम इससे ये भी ले सकते हैं कि मुत्तकीन के लिए। मकसद की हिदायत है मुत्तकीन के लिए। आप देखिए मुख्तलिफ सूरतें हैं, सूरतुल मोमिनीन, कद अफ़लहल मोमिनून, उसके अंदर क्या है? फला की बात की है, किन लोगों के लिए? मुत्तकीन के लिए। और उसके अंदर बताया कि कौन कौन सी खुसूसियात इंसान के अंदर होनी चाहिए, एक मोमिन के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए कि जिसके नतीजे के अंदर वो अपनी आखिरत को बेहतर कर ले, फला पा जाए और जन्नत का हकदार ठहरे। तो वो कहता है कि अगली आयत के अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो नमाज कायम करते हैं। वो कहता है कि हिदायत तो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं मोहसिनीन के लिए, वो जो नमाज कायम करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये नमाज है क्या? ये बेहतरीन एक जिक्र का एक बेहतरीन तरीकेकार हमारे यहां पर जो है, लोग हमारे यहां पे मुख्तलिफ जावियों से जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन एक बेहतरीन जिक्र को छोड़ देते हैं। और वो सबसे बेहतरीन जिक्र कौन सा है? नमाज, सलात। आप देखिए हमारे मुआशरे के अंदर चलन यही है, मुख्तलिफ जगह जाकर जिक्र भी करते हैं, जिक्र अस्कार की भी बात होती है, सब कुछ होती है, लेकिन नमाज नहीं होती। नमाज क्या है बेसिकली? नमाज ये समझ लीजिए कि इस दीन इस्लाम की असल है, बुनियाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल है, ये बुनियाद है, ये असल में सर चोटी है। किसका? दीन इस्लाम की चोटी है। और जो नमाज के अंदर कमजोर है उसका ईमान भी कमजोर है। जो नमाज के अंदर कमजोर है उसका ईमान कमजोर है। इसीलिए मैं अक्सर वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, और बड़ी शिद्दत के साथ वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिनके कानों के अंदर या जिनके घरों तक अजान की आवाज जाए और वो नमाज के लिए अपने घरों से ना निकले, मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं। आप बताइए इससे ज्यादा शिद्दत किसी अल्फाज में होगी? इससे ज्यादा कोई शिद्दत नजर आएगी आपको? वो जो रहमत लिल आलमीन है,
वो दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। मुझे एक बात बताएं, ये हदीस आप क्या कहते हैं इस अल्फाज की शिद्दत के हवाले से? है ना शिद्दत अल्फाज के अंदर? आपसे मैं पूछता हूं, आप शिद्दत है अल्फाज के अंदर? हमारे मुआशरे के अंदर क्या है लेकिन मुझे बताइए। हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी, आप अंदाजा नहीं कर रहे, यकीन कीजिए कि ये जो अजान की आवाज होती है, जो आपको बुलावा दिया जाता है, जिसका आप जवाब भी देते हैं, और उसके बाद भी अगर आप नमाज पढ़ने के लिए ना जाए, तो मुझे बताइए आपका ईमान बाकी रहा? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सख्त तरीन अल्फाज है। वो कहते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी, उसका इस्लाम से वास्ता है। इतने सख्त तरीन अल्फाज है इमाम मालिक रहमतुल्लाह। इमाम मालिक वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी मदीने के अंदर गुजारी, मदीने से मोहब्बत की वजह से वो बाहर न निकले। इतनी मोहब्बत थी कि वो घबराते थे कि मेरी रूह कब्ज ना हो जाए मक्के से, मदीने से बाहर जाके। जिन्होंने बूटा इमाम मालिक की, आप अंदाजा कीजिए कि नमाज की कितनी सख्त, और ये जो मैंने ईमान की बुनियाद बताई है नमाज, यहां पे इंसान खरा और खोटा पहचान लेता है इन दोनों के दरमियान। अजान की आवाज आए और नमाज पढ़ने ना जाए, इसका मकसद दिल के अंदर चोर है। कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है और थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज हो और वो नमाज पढ़ने ना जाए, उसका खोट पता चल जाएगा, उसकी मुनाफिकत पता चल जाएगी। इसीलिए फरमाया कि काफिर के अंदर, एक मुसलमान के अंदर जो अलेहदगी करती है जो चीज, वो क्या है? वो नमाज, वो बता देती है। अब मुझे बताइए कि नमाज का मकाम क्या है, और बाकायदा सवाल होने पूछा जाएगा उस नमाज के हवाले से। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर हम दीगर चीजों के अंदर तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इन चीजों के अंदर हिदायत तो अगर आपको चाहिए तो अल्लाह की किताब आपको वाज़ेह अल्फाज के अंदर पैगाम दे रही है, नमाज को कायम करो। नमाज बुनियाद है। हमारे हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी के अंदर नमाज का बिल्कुल भी एहतमाम नहीं। एहतमाम तो दूर की बात, अजान हो रही थी, अजान का एहतमाम हम नहीं करते हैं अक्सर में। आप देखिए कि टेलीविजन चल रहा है, आवाज के अंदर, तेज आवाज के अंदर बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नमाज नहीं। तो फिर तो हमें अपने गिरेबान को जांच करना चाहिए और देखना चाहिए क्या मुसलमान है या नहीं है। वो जो खास वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो उसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं या नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चीज का अंदाजा कीजिए, इस पर सोच और गौर और फिक्र कीजिए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इस नमाज का एहतमाम करने की कोशिश कीजिए, और हिदायत का पहला, उसके बाद जो अगर कोई स्टेप आता है तो वो नमाज है। और नमाज के अंदर फिर कहता है कि वह युतून ज़कात वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून। वो कहते हैं और ज़कात देते और आखिरत पर यही लोग पुख्ता यकीन रखते हैं। ज़कात पाकी का नाम है। किसकी पाकी का नाम? माल की पाकी का नाम, एक तरीके से रूह की पाकी का नाम भी है। माल की पाकी का नाम ज़कात है, और ज़कात का असल वजह क्या है, मकसद के इस्लाम के अंदर? देखिए, सूरह तकासुर अगर आप मुताला करें, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ इंसान तुझे किस चीज की कसरत में मुब्तला कर दिया है। तो मुफस्सिरीन की तफसीरों को जब उठा के देखेंगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। पिछले मुआशरे के अंदर आपको माल, पिछले मुआशरे के अंदर आपको औलाद की कसरत नजर आती थी, और इस मौजूदा वक्त के अंदर आपको जो कसरत नजर आती है वो माल की कसरत है। और माल का मामला यह है कि माल की जो मोहब्बत होती है वो नजर को खीरा कर देती है।
वो मुआशरे से बदगुमान कर देती है, वो अपने और पराये के अंदर तफरीक पैदा कर देती है। अगर किसी के पास थोड़ा सा माल आ जाए ज्यादा, फिर आप देखिए उसकी चाल ढाल देखिए, उसके रंग ढंग देखिए। वो कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, मेरे पास सारी आसाइश है। इसलिए अल्हाकुमुत तकासुर के अंदर कहा गया कसरत। ये कौन सी कसरत है? ये कसरत है जो भी चीज जो आपको अल्लाह से और अल्लाह के दीन से गाफिल कर दे, वो कसरत है। मुफस्सिरीन ने दो मायने हैं इसके, लेकिन जो चीज आपको अल्लाह के दीन से गाफिल कर दे, वो गफलत है, वो तकासुर है, वो कसरत है। उस कसरत को झटकना चाहिए इंसान को। और जिसने पैदा किया है वो आपकी फितरत से अच्छी तरीके से वाकिफ है और वो आपको जानता है, इसलिए उसे पता है कि इंसान को किससे मोहब्बत है, उसे पता है कि औलाद से मोहब्बत ज्यादा है। देखिए रात को 1 बजे या 2 बजे उसके दर्द उठता है या कोई प्रॉब्लम, देखे किस तरीके से वो भागता दौड़े लगाता है, चाहे उसकी हालत खुद खराब हो रही हो, वो कमा कर आया हुआ हो, वो कितना ही थका हुआ हो, वो कितनी मुश्किलात में घिरा हुआ हो, लेकिन उस औलाद के लिए वो ऐसा खड़ा हो जाएगा बिल्कुल और लेके भागेगा उसको और हर जतन करने की कोशिश करेगा, और चाहे वो नाफरमानी को ना हो, और चाहे वो नाफरमान ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए आप देखिए, उसकी तड़प देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए। मैं आपसे कहता हूं कि आपका रब तो उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है ना, तो आपकी तड़प उसके लिए क्यों नहीं है, आपके रब के लिए, अपनी औलाद के लिए क्यों? वो आपकी फितरत से वाकिफ, इसलिए उसने यहां पे लिखा, और एक बार नहीं लिखा, कई कई बार लिखा। सूरह मोमिनून के अंदर लिखा हुआ, सूरह तकासुर के अंदर। इसलिए ये जो कसरत है, ये इंसान के अंदर समझ लीजिए कि वो तमाम की तमाम बुराइयां इंसान के अंदर पैदा कर देती है, वो इंसान के अंदर तफरीक के पैदा कर देती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के साथ साथ, आप देखिए कुरान शरीफ जब आप पढ़ेंगे, अक्सर और बेशतर वाकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात का जिक्र मिलेगा। नमाज कायम करो, ज़कात दो, इसीलिए कि असल में असल बीमारी को तो निकाला जाए ना। औलिया अल्लाह के पास जाते हैं हम, बुजुर्गान दीन के पास, उनकी दावत क्या थी? इस दुनिया से बेनियाज करते थे वो कहते थे माल और मता कुछ नहीं। वो क्या कहते थे? माल और मता कुछ नहीं है। वो जिक्र कल भी करवाते हैं, मुख्तलिफ जिक्र करवाते, उसकी वजह क्या है? इस दिल को पाक करना। नमाज आपको रूहानियत बख्शती है, और माल जो है वो बेसिकली आपके अंदर तफरीक पैदा करता है। इसलिए हम नमाज का और ज़कात का अक्सर और बेशतर जो जिक्र सुनते हैं, वो दोनों का साथ सुनते हैं, वाकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। और एक और बड़ा मसला हमारे मुआशरे के अंदर हम देखते हैं अक्सर और बेशतर, क्या है? ज़कात की अदायगी के अंदर हम फख्र महसूस करते हैं, और ये बुराई है, इसलिए मैं इसको जिक्र कर रहा हूं यहां पर, और कोशिश करते हैं कि 500 लोगों के अंदर तो ज़कात कम से कम बचनी चाहिए मेरी, और फिर वो 100-100 रुपए के खुले करवाते हैं, 500-500 रुपए के खुले करवाते हैं वो, और उसके बाद जो आता है उसको तकसीम करते हैं, लोगों को देते हैं। मैं समझता हूं कि ज़कात की असल जो है वो खत्म हो जाती है, कि लोगों की मदद करना, अपने भाई को खड़ा करना। मुझे बताइए 100 रुपए से और 500 रुपए से खड़ा हो, ये ट्रेंड चल निकला हमारे माशरे के अंदर। आप देखिए एक ट्रेंड और भी चल निकला है
क्योंकि अब हमारा एक दूसरे के ऊपर एतबार खत्म हो चुका है ना। हम पैकेट बनाते हैं राशन के और वो तकसीम करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता उसको राशन की जरूरत है या उसको पैसे की जरूरत है। एक और ट्रेंड चल निकला है कि हम ज़कात अपने करीब के लोगों में देते ही नहीं है, अपने अजीज व अकारीब में नहीं देते हम ज़कात। हम 3 गलियां 2 गलियां पीछे जाकर लोगों को ज़कात देते हैं कि पता चले कि आदिल शेख ने ज़कात दिया, नाम होगा, पता तो चले कम से कम यार ज़कात दे रहा हूं मैं पैसे दे रहा हूं, फिर एहसान जताना। आपके रहम के रिश्ते कहां गए? मुफ्ती साहब यहां पे मौजूद है, मैं उनकी मौजूदगी के अंदर ये हिम्मत तो नहीं हो रही है बात करने की, हकीकत बात यही है, रहम के रिश्ते कहां गए? वो जिनसे सिला रहमी की तलकीन की गई है वो तो मुआशरे से गायब हो गया। मेरा भाई तंगदस्त है, मफलूकुल हाल है, कसमा पुरसी के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, बराबर के घर में रहता है, मुझे उसकी फिक्र नहीं। मुझे उसकी ये भी फिक्र नहीं है कि उसके घर के अंदर क्या बना है और क्या नहीं बना है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे ये भी फिक्र नहीं है कि मेरी बहन कितनी मुश्किलात के अंदर है, लेकिन हां मुझे ये फिक्र है फला गली के अंदर फला है, उसको दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, देना चाहिए, लेकिन कम से कम आप अपने रहम के रिश्तों को तो कंप्लीट कीजिए। जहां पे सिला रहमी की हिदायत की गई है, बात की गई है, वहां से आप रफू चक्कर होने की कोशिश करते, क्यों? वजह क्या है असल में? उसकी वजह यह है कि आपका दिल, आपकी नीयत पाक नहीं होती। इस नीयत को, इसको पाक करने का बेहतरीन तरीका क्या है? मैं कहता हूं कि जिक्र, वो जो जिक्र की बात हो रही थी, नमाज आपको बहुत कुछ देती है और ज़कात आपको पाक करता है। आपके अंदर से ये गन, ये दिखावा, असल में ये है ही चीज यही ना कि असल में से आपके अंदर से वो जो बुराई है उसको निकाल फेंका जाए। आप एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर। वो कहते हैं ना, उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने के अंदर लोग लेके फिरते थे, लेने वाला नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद से जितने भी अखबार देखे खुलफा राशिदीन का, अमन व अमान, ज़कात बैतुल माल के अंदर जमा होती थी। दर हकीकत निजाम तो वही था, लेकिन अब इस निजाम को किस तरीके से कंपाइल करें, किस तरीके से मैनेज करें। लिहाजा जब हम इन तमाम चीजों को जब हम बगौर मुताला करने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदाजा होता है ये 2 चीजें ऐसी हैं कि अक्सर और बेशतर कुरान के अंदर साथ आती है। इसीलिए माल को वहां टारगेट किया गया, हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुर्तुल मकाबिर के अंदर, कसरत, इस कसरत से निकालने के लिए ये चीजें। सूरह मोमिनीन के अंदर आप देखिए ये सारी की सारी गुफ्तगू के फला के लिए जो रास्ता है, उन रास्तों के ऊपर चलने के लिए ये चीजें है, नमाज है, ज़कात है, लग़वियात से परहेज है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। कहते हैं नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यही लोग पुख्ता यकीन रखते हैं। देखिए बुनियादी अकीदा है अल्लाह और आखिरत, ये समझ लीजिए, उसके बीच में जो भी हो फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आपका आखिरत पे यकीन मजबूत होता है तो आपका अल्लाह के ऊपर यकीन मजबूत है। आपका अल्लाह के ऊपर यकीन मजबूत है, आपके फिक्र आखिरत के ऊपर। और याद रखिए ये फिक्र आखिरत, ये जो आखिरत की जवाबदही का जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर मौजूद है, ये जो कुरान हमें बार बार बताता है, उसकी असल वजह क्या है कि इंसान सुधर जाए। दिन मर के आपको कब्र के अंदर जाना है और रोज़े महशर आपका हिसाब व किताब और उसके नतीजे के अंदर सजा का तयन। जो कामयाब ठहरे वो खुशी से निहाल, और जो नाकाम ठहरे उनके लिए जहन्नुम। इसलिए आखिरत बुनियादी अकीदा
इसीलिए बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना, जो नेचुरल फिरके वाले जो लोग हैं, वो आखिरत का मकसद क्या, वो हर चीज को अकली बुनियाद के ऊपर तस्वुर करते हैं कि अकल क्या कहती है। हम अक्सर बेशतर सुनते हैं कि वो लोग बुनियाद बनाते हैं अकल को, मकसद बुनियाद बनाने वाले तो अल्लाह को ही बुनियाद बना लेते हैं। वो इमाम अबू हनीफा का एक वाकया बड़ा मशहूर है ना, मकसद उनसे पूछा कि अल्लाह है या नहीं, और फिर एक पूरा का पूरा मुनाजरा उनके सामने रखा गया। वो जो मुल्हिदीन थे वो आके खड़े हो गए उनके साथ, मकसद के बुलाया गया बादशाह के दरबार के अंदर कि फला दिन के ऊपर आपके साथ एक बड़ा मुनाजरा होगा। बोले किस बुनियाद के ऊपर? मैंने जी अल्लाह है या नहीं है। और फिर वो पूरा वाकया है कि इमाम हनीफा पूरे मराहिल से गुजरते हैं और उसके बाद वहां पे पहुंचते हैं, और पहुंचने में उनको बहुत देर हो जाती है। तो मुल्हिदीन कहते हैं और खुशी मनाते हैं कि शायद इमाम अबू हनीफा के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा खामोशी से बैठते हैं, और वो जब पूछते हैं कि आपको इतनी देर कैसे हो गई आने के अंदर, तो फरमाते हैं कि दरअसल मुझे उस नदी के उस पार से आना था, मेरे पास कन्वेंस नहीं थी, मेरे पास सहूलत नहीं थी, कश्ती नहीं थी, इसलिए फिर मैंने अजीब मामला देखा कि मेरे करीब के अंदर एक दरख्त था, और वो दरख्त खुद ब खुद कटता है, और खुद ब खुद कटने के बाद उसके खुद ब खुद पत्ते बनते हैं, और फिर वो फट्टे बनने के बाद वो कश्ती बनती है, और वो बैठ के यहां पर आ जाता। तो वो पूरा का पूरा मजमुआ वो बैठा हुआ भगोड़ सुन रहा होता है, और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि फिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी के बनाए बन जाए। जब एक कश्ती बगैर किसी के बगैर बनाए नहीं बन सकती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये कायनात इतनी बड़ी वो किसी के बगैर बनाए बन जाए। इसलिए अल्लाह के ऊपर जो यकीन रखता है वो आखिरत के ऊपर भी यकीन रखता है, आखिरत की जवाबदेही के लिए। ऐसा तो नहीं है ना, हम माशरे के अंदर देखते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है, पूरे साल बच्चे पढ़ते हैं और आखिर के अंदर इम्तिहान होता है, उसकी जांच होती है, उसकी पड़ताल होती है। ये तो इसके अंदर तो अकल को इतनी दौड़ाने वाली बात ही नहीं है, लेकिन उस आखिरत की तैयारी के लिए फिक्रमंद होना चाहिए इंसान को कि जिस दिन हम सब वहां पे खड़े होंगे और अपने मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा दिखाएंगे, किस हाल के अंदर जाएंगे हम। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, ये जो इब्तदाई आयात मैंने आपके सामने सूरह लुकमान की जो रखी, उसके अंदर यही अहम चीज है कि हम अपना मुहासबा करें और अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी नमाजों को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी इबादत को बेहतर करने की कोशिश करें, और जितनी भी चीजें हैं उसको साथ लेके चलने की कोशिश करें। और इस कुरान को अपने सीनों से लगाइए, अपने सीनों से लगा के अपने घर के अंदर इस महफिल का एहतमाम कीजिए। मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला आपके घरों के अंदर बरकतों का नुज़ूल फरमाए। बदकिस्मती ये है, अफसोस ये है कि हमने इसको ताकों के अंदर उठा के रख दिया। हम अपने मतलब के लिए तो इसको इस्तेमाल करते हैं, जब कभी कोई दुख या तकलीफ होती है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी को कुछ देना हो तो उसके अंदर से दे देते हैं निकाल के, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। वो जिस लिए आया है, हिदायत के लिए, इनकलाब के लिए आया है कि हमारे अंदर इनकलाब बर्पा कर दे और हक और सच और बातिल को हम पहचान लें और हक के साथ खड़े हो जाएं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, जो कुछ यहाँ पे सुना गया उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।